Gracious, the most merciful, respected students, friend, follower. You are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194664. Dear student, we're going to start canto number 5, Rape of Lock, canto number 5 by Alexander Pope. You know that Alexander Pope, he writes mock epic, not original epic. He is in fact creating a mock epic in which grand ideas are being compared with little ideas, trivial ideas, tiny ideas, not very important idea. They are being mixed with lofty kind idea. The words of Homer and Virgil, they are being compared with a petty idea, very you could say small idea, trivial idea, not up to that level lofty, but they are being compared with his witty, with his you could say with his styles, his mock epic style. He's gonna mix grand and lowest kind of idea with each other, and he is just giving you a blend of the grand idea and you could say tiny idea, trivial idea. They are being mixed. He will talk about the Homers, the god and goddesses war of Homer, Virgils, and he will bring all these ideas, going to blend it with the trivial idea, and that really going to create a mocking kind of style, a mocking kind of situations, and in which you will enjoy while studying. So here in canto number 5 we see that Belinda, she is furious enough because she has lost her beautiful lock. So here when Umbriel, the gnome, he went to the goddess of spleen, brought a sack of sobbing and pains, tortures, and something melancholies like that. He has brought all these all these you could say troublesome things, and he is going to pour all these sobbings and tortures, agonies in the head of Belinda, so that Belinda may weep. Belinda should weep because he is a gnome of spleen, and so she wants that all weep. So what happens when she poured this sack in the head of the ladies? Ladies started making hue and cry. There was great hue and cry, and there is you could say lightning and flashings that is coming out from the eyes of Belinda. Belinda started fighting. They made hue and cry, male and female, they both are fighting with it. There is a group of people, they are favoring Belinda, and group of people, they are favoring to Baron. Suppose they are fighting, and what they fighting? They are fighting with bodkins, with clips, with pretty kind of things, like even they are making them to sneeze. So something like that fighting is over there. So Thalstris, who was giving fire to this fight, she is also involved, and then the gnome is also happy because they are fighting now. And what happened? This war is being compared with the Virgil's work, with the Homer's work, god and goddesses fight as well. Then we further see over here that the Belinda, in fact, she is trying to demand Baron give her lock back, but Baron is not gonna give him, because even he is just like the person, the Trojan king Aeneas, because Aeneas who was not going to stop at all. He was asked again and again by Dido, the queens, and the sisters of the queen Aeneas, both made hue and cry to stop him, but he did not stop. He went to Carthage. So it looked like that, the person like the Trojan king and Aeneas, because Aeneas was not stopped, and same way Baron is not gonna stop. So this thing shows both people like Aeneas and Mr. Baron, they are being compared and they are considered equal personality, while we know that they can never ever be equal. That was a grand person, and this person is just like belongs to lowest kind of work. So these work can't be compared, but he is still comparing.
लेकिन वो फिर भी उनको कंपेयर करता है, दोनों के वर्क जो हैं वो बड़े, वो वार पे जा रहा है और ये छोटी सी बात है, अब दोनों को कैसे उसने कंपेयर कर दिया। एक तो ये हम इसके अंदर देखेंगे जो पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम इसके अंदर ये देखेंगे कि अगर ये बस में होता, यहाँ पे मज़ीद वो बताता है पॉप कि इसके बाद एक स्पीच होगी। स्पीच कौन करेगी? एक लेडी है जिसने अपना सीजर जो है वो बैरन को दिया था, और ताकि वो क्लेरिसा अपनी स्पीच करेगी और स्पीच में बताएगी कि मैरिट जो स्ट्राइक जो चार्म होता है, चार्म स्ट्राइक द साइट, मैरिट विन द सोल। सो इफ वी वांट टू बी अ ब्यूटीफुल लेडीज, वी वांट दैट वी शुड बी ब्यूटीफुल, सो फॉर दैट वी हैव टू बी वर्चुअस एज वेल। हमें नेक काम और नेक करैक्टर और नेक सीरत होना चाहिए, ना कि नेक सूरत। So she also further extend her conversation that if we want to be look good, that men should admire her. They should say that look at the beauties, they are beautiful by nature as well as by forms. तो हमें by nature और by form दोनों साइड, by action हमारी यानी हमारी वर्चुअ, हमें वर्चुअस भी होना चाहिए और साथ साथ शक्ल सूरत का भी अच्छा होना चाहिए। इफ वी हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक, male or men will admire us. Look at the beauties are coming, they are good by nature and by form. देखो खूबसूरत दोशीजा आ रही है जो अपनी खूबसूरती और करैक्टर से भी खूबसूरत है। यानी फिर कहती है कि लोग हमें ऐसा बुलाया करेंगे। हमें अपनी खूबसूरती के साथ साथ किस पे मेहनत करनी चाहिए? अपने करैक्टर पर वर्चुअस होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला होता कि जिसकी वजह से डांस करने से, बनाव श्रृंगार करने से, फेस को ज्यादा पेंट करने से, ज्यादा अच्छा बनाने से अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती, क्लेरिसा अपनी स्पीच में बताती है कि उससे स्मॉल पॉक्स ना हमारे चेहरे पे आती, हम ओल्ड एज ना होते, ये नीचे नीचे पिंपल जो मुंह पे निकल आते हैं फीमेल्स के, ये ना निकल पाते, या कहती है कि हम यानी पेंट करने से, खूबसूरत बनाने से अगर पिंपल ना निकल पाते, हम अपने बढ़ती हुई उम्र को रोक लेते, चेहरे की रिंकल को रोक लेते, या जो हमारे बॉडी पे अफेक्ट हो रही है एज उसको रोक लेते, तो फिर ऑगलिंग करना ये बड़ा महान समझा जाता, ठीक है, इसको बड़ा एडमायर किया जाता। यहां पे आपको ये बताती है क्लेरिसा कि अगर ये ऐसा मुमकिन होता, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सोबिया हैज कम, मोस्ट वेलकम फॉर सोबिया, you was offering prayer. So whenever you offer prayer, do remember us. Very nice job. So we have started canto number 5. In canto number 5, we are going to discuss that the war between Belinda's group and Baron's group is just compared with the god and goddesses that happens in Roman Greeks. जो रोमन ग्रीक्स में जो वार दिखाई गई है, जो ट्रोजन वार है, विर्जिल ने जो अपनी एपिक के अंदर दिखाई है, ये बिल्कुल ऐसे ही है गॉड गॉड्सेस की वार। यानी हो तो वो यानी ह्यूमन, जिनके अंदर जो था ह्यूमन पैशन था, और वो गॉड और गॉड्सेस ऐसे लड़ रहे थे अपने अंदर बुग्स और दुख लिए जैसे इंसान लड़ते हैं। यानी वो थे तो गॉड गॉड्सेस, लेकिन वो लड़ते ऐसे थे जैसे कोई आम इंसान होते हैं। तो ये लड़ाई हमें बिल्कुल ऐसे लगती है। हालांकि देखें, बड़ी चीजों को छोटी चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है, इसे ही मॉक एपिक कहते हैं। अगर देखा जाए तो होमर विर्जिल का जो वर्क था वो ग्रैंड था, ठीक है, वो ग्रैंड चीजों, जंगों की बात करते थे, शहजादों की बात करते थे, किंग क्वीन की बात करते थे, गॉड गॉड्सेस की वार की बात करते थे, बड़े लेवल पे वार होती, और वो स्टोरी जो है एपिक की फॉर्म में वो सुनाते या वो लिखते या जो उनका वर्क था। लेकिन अभी जो आपके सामने एपिक है, उस जैसा वर्क, ग्रैंड वर्क तो नहीं कर सकता, होमर की एपिक को तो नहीं पहुंच सकता, या विर्जिल की एपिक को, तो ये रोमन ग्रीक्स के पोएट को तो नहीं पहुंच सकता था। तो फिर इसने सोचा कि मैं कौन सी एपिक लिखूं। इसने ट्रांसलेट किया था होमर और विर्जिल के वर्क को। फैंटम और ब्रूम जो थे इसके फ्रेंड थे, इनके साथ मिलकर इसने ट्रांसलेट किया था। ये किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया था, और ये घर में ही बैठ के इसने बुक्स को पढ़ा था, और फिर ये ट्रांसलेशन का जो है ये माहिर हो गया, क्योंकि इसने बुक्स पढ़ी हुई थी। तो ये फिर उनके वर्क को ट्रांसलेट कर देता है। यानी जब आप किसी चीज को ट्रांसलेट कर देते हो तो फिर वो एक नई चीज बन जाती है। और आज भी इस पे वर्क हो रहा है। अक्सर आप देखें, ट्रांसलेशन स्टडी जो है वो एमफिल लिंग्विस्टिक में इसके ऊपर थीसिस लिखे जाते हैं, ट्रांसलेशन स्टडी। तो हम जितनी भी कोशिश कर लें एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, जैसे डेविड क्रिस्टल ने
बुक्स लिखी हैं बहुत सारी। तो डेविड क्रिस्टल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, परफेक्टली ट्रांसलेट नहीं होती। आइडिया, इमोशन, पास, रिदम, इंटोनेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल, फोनोलॉजिकल, फोनटैक्टिक और बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम हू बहू वैसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए इसमें हमेशा गैप है, इसमें आप वर्क कर सकते हैं ट्रांसलेशन स्टडी में बुक्स। तो इसने भी उस वक्त क्या किया था, उन बुक्स को ट्रांसलेट किया था और फैंटम और ब्रूम के साथ मिलकर होमर विर्जिल के वर्क को जब ट्रांसलेट किया तो इससे उसका नाम ज्यादा बना पॉप का। यानी उस वक्त पोएट्स को क्वीन एना जो थी उस वक्त हुकूमत कर रही थी, क्वीन एन जिसका नाम भी लिया है कि हेयर क्वीन एना यूज टू सिट होम 3 रीन ओबेज, समटाइम काउंसल, समटाइम टेक टी। तो कभी वो काउंसल करती है, कभी टी लेती है। तो इट इज ऑल्सो मैंशन, यानी क्वीन एन जो थी उसका दौर था। जोनाथन स्विफ्ट को भी हमने पढ़ा, उस वक्त भी क्वीन एन थी और उसके भी ताल्लुकात उसके साथ अच्छे नहीं थे, बिकॉज शी वॉज नॉट गुड विद द पोएट्स एंड राइटर्स, शी डज नॉट एडमायर दैम। तो एनी हो, आज हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि बेलिंडा जो है वो अपना दुखड़ा सुनाती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिल जो हैं वो पसीज जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं साथ। लेकिन बैरन जो है वो बिल्कुल होमर और विर्जिल, जो विर्जिल का जो वर्क है उसकी एपिक जो है वो बिल्कुल उसकी तरह हो गया है। जैसे वो अनीस, उसका अनीड जो उसका वर्क है उसके अंदर अनीस जो हीरो है ट्रोजन वार पे, तो उसे रोका जाता है तो वो नहीं रुकता, ना वो एना के कहने पे रुकता है और ना डीडो जो उसकी क्वीन होती है उसके कहने पे रुकता है, बिल्कुल जिद्दी बन गया है। तो एनी हो, बेलिंडा जब उसके सामने कुछ नहीं, बैरन के सामने, तो वो लोगों के कहने पे क्यों रुकेगा, वो अपनी लॉक जो है वो वापस नहीं कर रहा। ये साथ साथ पॉइंट्स लिखती जाएं। अच्छा, ये वो उनको उसकी लॉक जो है वो वापस नहीं कर पा रहा और दे नहीं रहा, उसका दिल जो है वो बहुत सख्त हो गया है। और मज़ीद इसके अंदर जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो दिखाया गया है कि जो क्लेरिसा है वो अपनी स्पीच देती है। क्लेरिसा बताती है कि इंसान को सिर्फ अपनी ब्यूटी पे पेंट नहीं करना चाहिए, मेकअप ही नहीं करते रहना चाहिए, हमें अपने करैक्टर और वर्चुअस भी बनना चाहिए। अगर हम वर्चुअस और करैक्टर वाइज अच्छी हैं तो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली पीपल विल एडमायर, व्हेनेवर वी गो टू देम पीपल विल से दैट दीज आर द लुक लेडीज आर कमिंग हु आर गुड बाय हार्ट एंड बाय फेस। यानी हमें फेस और नेचर दोनों साइड से अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि ब्यूटी आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है लेकिन आपका करैक्टर जो है वो सेक्सुअल है, आपका करैक्टर जो है एक प्रोस्टिट्यूट जैसा है, आप लोगों में बुराई फैला रही हैं, आप लोगों को डाइवर्ट कर रही हैं, आप लोगों को बुराई की तरफ बुला रही हैं, तो दैट मीन यू आर नॉट वर्चुअस। एक तो चीज़ ये है जी, इससे बचना चाहिए वो कहती है। फिर कहती है कि अगर ऐसा होता कि अगर हमें, कहती है, डांस करने से, श्रृंगार करने से हम अपने चेहरे पर स्मॉल पॉक्स उसको रोक लेते, बढ़ते हुए चेहरे पे कर्ल आते, जो रिंकल आ रहे हैं उसको रोक लेते, और ग्रोइंग ओल्ड होने से रोक लेते अपने आप को, या ओगलिंग करने से, नाचने से, गाने से या मेकअप करने से ऐसा होता, मुमकिन होता, तो आपको कोई लेडी थोड़ा बहुत जो घर का काम करती है, नीडल वर्क करती है या कोई हाउस चोर या हाउस होल्ड का जो वर्क कर रही है, तो कोई फिर मिलती, अगर कोई मिलती भी तो वो फिर हमसे सेंट कहते हैं। यानी अगर ऐसा होता तो फिर सारी, इसका मतलब है कि लेडीज आती है। यानी हो कहती वट एवर यू डू, आखिरकार कर्ल हो या अनकर्ल हो, ये जो बाल हैं ये मट्टी में मिल जाएंगे और जो खूबसूरत जवानी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये स्पीच कौन करती है? क्लेरिसा। लेकिन इस स्पीच का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो इसको बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन और माहौल कुछ और था। और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत सारे जो बॉयज़ हैं वो लड़ते हैं और उनको लेडीज़ जो हैं अपनी आंखों से ही कत्ल कर रही हैं। ठीक है जी, वो बड़ी मेटाफोरिकल लैंग्वेज उनको यूज़ की है। और वहाँ पे एक क्लिप्स के चलने की आवाज़ें और बॉडकन्स जो होती हैं, क्लिप्स वगैरह, सुइयों के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, और जो पैटीकोट के ऊपर वो वहील जो मछली है उसके लगे हुए जो बटन्स जो हैं वो भी ऐसे खड़खड़ा रहे हैं, टिक टिक की आवाज़ें आ रही हैं जब वो लड़ रही हैं आपस में। ये एक मेटाफोरिकल है, इसको आप सेक्सुअल कॉनोटेटिव मीनिंग भी हम इससे ले सकते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल अफेयर्स और सम रोमांस अफेयर्स, दैट इज व्हाई द साउंड्स आर कमिंग आउट लाइक दैट। यानी इसके मीनिंग्स जो है ना वो हम ले सकते हैं डिफरेंट। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे प्लूम्स जो है वो जी, एक लेडीज जो है उसे मार देती है अपने फ्रॉनिंग से, अपनी तयूरी से, और फिर वो उसकी मुस्कुराती है तो फिर जिंदा हो जाता है। ये बड़ा रेडिकुलस कैरेक्टर है। तो दैट हैपन्स। लेट्स सी वन लाइन टू लाइन। Now let's see line to line text. Can you note line to line text? Pop is bit difficult but not impossible to understand. I'm here to teach you line to line text. Just have a look on line to line
and observe what I am saying, and after that write it down what I am saying to you. She said, line number 645, line to line text. You are listening to the voice of Sarrana, and I'm going to teach you line to line text. Canto number 5. She said, the pitying audience melt in tears, but fates and jobs had stopped the baron's ears. In vain Thalesrus with reproach assail, for who can move when fair Belinda fails. She said, उसने ये सारा दुखड़ा सुनाया, खूबसूरत लड़की ने, बेलिंडा ने, एंड पिटिंग ऑडियंस मर्ड, और सारे सुनने वाले जो हैं वो बिल्कुल क्या हो गए, पानी से, यानी आंखों में उनके आंसू शुरू हो गए. मेल्ट द ईयर, आंखों से, यानी उनको आंसू जो है, उनकी आंखों से आंसू, ऑडियंस की आंखों से आंसू निकलने लगे. बट फेट एंड जॉब हैड स्टॉप द बैरन टू ईयर्स. लेकिन फेट ने, किस्मत ने और जॉब ने, जो गॉड है, उसने उसके बिल्कुल उसके कानों में पर्दा डाल दिया, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, यानी वो सख्त दिल बन गया. इन वेन थैल्सरस विद रिप्रोच असेल. और थैल्सरस ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी सारा जो रिप्रोच, जो उसकी सारी एफर्ट है, उस पे उससे कोई असर नहीं हुआ. For who can move when fair Belinda fails? और दूसरा तो काम ही क्या कर सकता है, या दूसरा उसके बारे में क्या सोच सकता है जब बेलिंडा जो है वो फेल हो गई है. यानी जब बेलिंडा फेल हो चुकी है तो दूसरा उसके बारे में कोई और क्या कर सकता है. ये कौन कहता है? ये असल में आपको वो बता रहा है कि when such a great lady Belinda, who's beautiful enough and she is entirely failed to take her look back, what to speak about other. तो दूसरों के बारे में हम क्या कह सकते हैं. आगे देखिएगा, लाइन नंबर 649 पर हूं. Not half so fixed the Trojan could remain when Anna begged and Dido raged in veins. Then gives Clarissa graceful waved her fans. और कहता है कि ये बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं. Not half so fixed the Trojan could remains. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रोजन का जो किंग था एनीस, उसको एना बेग्ड, एना ने उसके सामने इल्तमास की, उसके सामने दरखास्त की, बेग्ड हुई, उसके सामने रोई, लेकिन नहीं माना. एंड डिडो रैग्ड, ये एक इसे कहते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस दिया उसने, आपको हवाला दिया है कि बिल्कुल ऐसे ही है. While Anna begged and Dido raged in vain. और बिल्कुल जैसे क्वीन डिडो जो है उसने भी कोशिश की, और उसकी जो सिस्टर थी डिडो की, एना, वो भी उसके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं रुका अनीस किसको, कार्थेज को छोड़ने में. यानी जैसे बिल्कुल कार्थेज को छोड़कर ना जाओ, उस जगह को छोड़कर ना जाओ, उसके सामने झुकी कौन, एना और डिडो दोनों ने कोशिश की, लेकिन अनीस नहीं माना. तो बिल्कुल ऐसे ही है, बैरन भी ऐसे ही सख्त हो गया. अब देखिए ना, ये रेफरेंस मीनिंग है, ये रेफरेंस दिया गया है, आपने इसको कैसे समझना है, ये रेफरेंस से सभी नहीं है. बहुत सारी बातें जो है पॉप, चूंकि इनको पढ़ा हुआ है, होमर वर्जिल को उसने डीपली स्टडी किया है, एंशियंट राइटर्स को स्टडी किया, घर बैठ के उनकी ट्रांसलेशन की है, तो वो उनके रेफरेंस देगा, हमें उनको भी साथ साथ डिस्कस करना है. Silence ensued and thus the nif begins. Then gave graves, तो फिर उसके बाद संजीदा, ग्रेव का मतलब लिखे संजीदा, फिर संजीदा लड़की क्लेरिसा जो है बड़ी ग्रेसफुल अंदाज से अपने पंखे को ऐसे वेव करती हुई, हवा देते हुए आगे बढ़ी. एंड साइलेंस ensued and thus the nif began. निफ खूबसूरत लड़की, फिर हर तरफ खामोशी छा गई और खूबसूरत लड़की ने बोलना शुरू कर दिया. क्या बोलती है? So why the beauty's praise and honors most? मुझे ये तो बताइए कि सबसे ज्यादा ब्यूटी को क्यों तारीफ किया जाता है, खूबसूरत चीजों को तारीफ, खूबसूरत लड़कियों को क्यों ज्यादा तारीफ किया जाता है, या उनको क्यों तारीफ करते हैं, उनको क्यों एडमायर किया जाता है, उनमें चीज क्या है कि हम एडमायर करते हैं खूबसूरत लड़कियों को. So why the beauty is praised and honored most? मुझे ये तो बताइए. ये पॉप की आवाज है, आप इसको लिख ले मेटाफोरिकली. पॉप ने भी एक लड़की को मैरी वर्थले जो है उसको वो एक
मॉडल थी, उसको उसने प्रपोज किया, लेकिन उस लेडी ने बिटरली रिजेक्ट कर दिया, हंसते हुए चली गई। यू लाइक अ वुमन, हाउ शुड आई मैरी विद यू। तो इस पे वो कहती है 4 इंच का है, ये 4 फीट का है और 4 फीट हाइट है और हंच बैक का प्रॉब्लम है और इस तरह की बदशक्ल बंदे से मैं क्यों। तो उस पे उसने एक एलजी भी लिखी थी, एलजी ऑन अनफॉर्चुनेट लेडी। ठीक है, तो आप इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में उसको डिटेल देना है ताकि अगले को पता चले भाई इसने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ ये नहीं रट्टा नहीं लगाया हुआ। ही नोज समथिंग, he knows idea behind the tax, so you have to give what is coming before tax and what is coming after tax, and कौन सा ये कैंटो है ये भी बताइए आप उसके अंदर अगर मार्क्स गेन करने हैं। से वाई द ब्यूटी प्रेज्ड एंड ऑनर्ड मोस्ट, मुझे ये तो बताइए ब्यूटी की तारीफ क्यों की जाती है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑनर, उसको क्यों ज्यादा एडमायर किया जाता है हर जगह पे। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, आप किसी कॉलेज में चले जाएं, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप किसी स्टेट पर भी चले जाएं, यू सी ब्यूटीज आर एडमायर्ड, ब्यूटी इज गिवन वैल्यू, एंड इफ यू आर ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल पीपल विल कम टू यू एंड टॉक टू यू, बट दे आर नॉट गोइंग टू सी योर कैरेक्टर, दे आर नॉट गोइंग टू सी योर वर्च्यू, दे आर नॉट गोइंग टू सी योर गुड way of dealing. They are just focusing on beauty, and this is the dilemma of this age as well. You can extend it as much as you can. The wise man's passions and the vain man's toast. और wise man जो है वो भी जो है man's toast, ये इसको क्या wise man के passion से, एक अक्लमंद के passion जज्बात से भी ज्यादा इसको एडमायर किया जाता है। and vain man's toast, और जो इंसान है दूसरे इंसान है उससे भी ज्यादा, एंड वेन मैन्स इन टोस्ट, और इंसान जो है वो दूसरे इंसान जो है वो बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है वाई डेक्ट विद ऑल दैट लैंड एंड सी अफोर्ड, इसको जरा अंडरलाइन कर लें, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाई डेक्ट विद ऑल दैट लैंड एंड सी अफोर्ड, वाई एंजल्स कार्ड एंड एंजल्स लाइक अडोर्ड। इन दोनों लाइनों को अंडरलाइन करें। मुझे ये तो बताइए, क्लेरिसा कहती है कि दुनिया के अंदर समंदरों और अर्थ से जो भी चीजें निकलती हैं उनसे क्यों ब्यूटी को डेकोरेट किया जाता है, मुझे ये तो बताइए। वाई, क्यों एक खूबसूरती को या फीमेल्स की खूबसूरती को, उनके चेहरे को, जो जमीन और सी से चीजें निकलती हैं, जैसे सी से भी बहुत सारी सिप्पियाँ और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं जो कि अपने उनके बैंगल्स बनाए जाते हैं, उनके वो हाथ पे पहनने वाले बनाए जाते हैं, वो लेडीज़ को पता होगा, तो बहुत सारे उसके नेकलेस बनाए जाते हैं। तो क्यों चीज़ें अर्थ और ज़मीन और सी से जो भी निकलती हैं उनको लेडीज़ की ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किया, क्यों डेकोरेट किया जाता है, क्यों बनाओ श्रृंगार के लिए इस्तेमाल। वाई एंजल कॉल्ड एंड एंजल लाइक अडोर्ड, क्यों इनको एंजल्स कहा जाता है कि ये दिखने में तो ये तो कोई एंजल्स लगती है, ये तो कोई परी लगती है। एंड एंजल लाइक अडोर, और इनको परियों की तरह क्यों पूजा जाता है। वाई राउंड आवर कोचेस क्राउड द वाइट क्लब ब्लूज, अब मुझे ये तो बताएं, ये जो आशिक हैं ये हमारे कोचेस के, खूबसूरत लड़कियों की कोचेस के इर्द गिर्द क्यों क्राउड की तरह जमा रहते हैं। Why bows the sidewalks from the inmost rows, क्यों कतारों में लगे ये जो बांके नौजवान हैं, ये यंग लोग जो हैं हमें क्यों झुकते हैं, खूबसूरत लड़कियों को क्यों सामने झुकते हैं। How vain are all these glories, all our pains, हमारी ये तमाम अजमत और ये तमाम बनाओ शिखार और तमाम पेन जो है ये बेकार है। वेन का मतलब होता है बेकार। Unless good sense preserves what beauty gains, जब तक हमारे अंदर अकल नहीं है, गुड सेंस नहीं है, हम अकलमंद नहीं है, तो कहती है क्लेरिसा कहती है कि इस ब्यूटी का कोई फायदा नहीं। That men may says when we the front box grace, और men may say when we front box grace, कि होना तो ये चाहिए कि मर्द ये कह सकें जब हम बाहर निकलें कि देखो ये लड़कियां जो हैं ये खूबसूरत बाई नेचर भी हैं और ग्रेस वाइज भी खूबसूरत हैं और अकल वाइज भी खूबसूरत हैं, यानी सीरत और सूरत दोनों साइड से खूबसूरत हैं। बिहोल्ड, यानी व्हेन द फ्रंट बॉक्स, जब भी हम बाहर निकलें तो मर्द ये कहें बिहोल्ड, देखो
द फर्स्ट इन वर्च्यूज एज द फेस। देखो ये वर्च्यू में भी अच्छी है और किरदार और सीरत और सूरत दोनों की अच्छी है। ओ इफ टू डांस ऑल नाइट एंड ड्रेस ऑल डे, अगर सारा दिन डांस करने से, ड्रेस अच्छा पहनने से, बनाव सिंगार, पेंटिंग और मेकअप करने से, वो कहती शाम द स्मॉल पॉक्स एंड चेज्ड ओल्ड एज अवे, कि हम स्मॉल पॉक्स को रिमूव कर पाते हैं, ये जो नीचे पिंपल से निकल आते हैं मुंह पे, अगर हम महासों को हटा सकते स्मॉल पॉक्स को, और चेज ओल्ड एज अवे, और हमारी पुरानी हमारी बढ़ती हुई एज को हम खत्म कर पाते। टू पैच नेओगल्स माइट बिकम सेंट, तो फिर जो छोटा मोटा घर का काम करने वाली है या मर्दों के साथ जो ओगल करती है, इधर उधर देखती है, उसको तो फिर सेंट कहा जाता। यानी अगर इस तरह होता तो अगर कोई थोड़ा बहुत भी घर का काम जानती होती, फिर तो घर के काम करने की जरूरत ही नहीं थी औरत को, फिर सारा दिन वो मेकअप ही करती रहती, क्योंकि एज भी खत्म होती है, स्मॉल पॉक्स भी नहीं निकलते और बहुत सारे काम उससे हो जाती है। नॉर कुड इट श्योर बी श्योर अ सिन टू पेंट, और यकीनन फिर इस तरह पेंट करना चेहरे को गुनाह भी ना होता। बट सिंस अलास, लेकिन अफसोस की बात है, फ्रेल ब्यूटी मस्ट डिके, ये नाजुक ब्यूटी को तो खत्म होना है। कर्ल्ड अनकर्ल्ड सिंस लॉक विल टर्न टू ग्रे, आप इसको कर्ल करें या अनकर्ल करें, या इसमें बल पड़े हों आपके बालों में या बल ना पड़े हों, आखिर इस लॉक को, इस आपकी जो आपकी लॉक है हेयर की लटें जो हैं, इन्हें व्हाइट होना ही है। ग्रे का मतलब लिखे व्हाइट। सिंस पेंटेड और नॉट पेंटेड ऑल शॉल फेड, आप इसको पेंट करें या ना पेंट करें, कलर करें बालों को ना करें, मुंह के ऊपर पेंट डालें ना डालें, आप मेकअप करें ना करें, अगर आप वैसे बैठे रहें या ना बैठे रहें, आप जो सा भी काम करें अपने चेहरे के ऊपर, आखिर इसने क्या होना, फेड हो जाना है, इसने आखिर मुरझा जाना है। एंड शी हू स्कॉर्न अ मैन मस्ट डाई अ मेट, और वो जो मर्दों से नफरत करती है, जो मर्द से नफरत करती है, वो हमेशा कवारी मरती है। What then remain but well our powers to use, तो फिर ये हमारी ब्यूटी का, ये जो हम बनाव श्रृंगार करती हैं, इसका फायदा क्या है। And keep good humor still whatever we lose, और फिर कहता है कि हमें चाहिए कि हमें कीप गुड ह्यूमर, हमें अच्छा मिजाज रखना चाहिए, स्टिल वट एवर वी लॉस, और इससे जाता क्या है, अगर हम अच्छा मिजाज रखें, अच्छा करैक्टर रखें, अच्छा वर्चुअस रहें, किरदार अच्छा रहे, तो इससे अच्छे मिजाज से क्या होता है। चार्म स्ट्राइक द साइट मैरिट विन द सोल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे आने वाली है, इसको अंडरलाइन करना है आपने। एंड ट्रस्ट मी डियर गुड ह्यूमर्स कैन प्रिवेल्स, और मुझ पे यकीन करो प्यारे, अगर आपका ह्यूमर मिजाज अच्छा है तो ये हर जगह आपका लोगों का दिल जीत लेगा। वैन यूर्स, अगर आप दिखावा करोगी, अगर आपका मिजाज जो है वो बुरा है, एंड फ्लाइट, और आप क्या हो, नखरे वाले हो, स्क्रीम्स, और लोगों पे चिल्लाते हो, एंड स्कॉल्डिंग फेल, और दूसरों को बुरी नजर से देखते हो, तो फिर क्या होगा। ब्यूटीज इन वेन्स प्रिटी आईज मे रोल्स, और क्या करती हैं औरतें जो हैं, अपनी प्रिटी आईज के जरिए इधर उधर देखती हैं ताकि मर्दों को लभाएं, लेकिन मैं कहूंगी, आगे वो कहती है, चार्म स्ट्राइक द साइट बट मैरिट विन द सोल। मैंने अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन कर लें दोनों लाइंस को। औरतें जो है इधर उधर देखती हैं अपनी खूबसूरत आंखों से ताकि मर्दों को, दूसरों को लुभाएं और वो अट्रैक्ट करें। चार्म स्ट्राइक द साइट बट मैरिट विन द सोल, आपकी जो जाहरी खूबसूरती है सिर्फ आंखों को ही अट्रैक्ट करती है, आंखों को अच्छी लगती है, बट मेरिट जो है, अच्छा किरदार, अच्छी खूबी, अच्छा मिजाज इंसान की रूह को खींच लेता है दूसरे की। सो सपोक द ड्रीम्स बट नो अप्लॉज इन यूज्ड, वोमन की जितनी भी तारीफ की जाए बट नो अप्लॉज टू इन, लेकिन उसकी कहता है कोई फायदा नहीं है, उसकी तारीफ का कोई फायदा नहीं है। ब्लिंडा फ्रॉन्ड एंड थैल्प्स कॉल्ड हर फ्रूट, अब वो यानी बट नो अप्लॉज, उसने वो इस तरह उसने औरतों के बारे में कहा, यानी ये उसने स्पीच की बट नो अप्लॉज इन यूज, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब लिखने बट नो अप्लॉज हुई है कि किसी ने भी तारीफ नहीं, किसी औरत ने भी उसकी स्पीच की तारीफ नहीं की या उसे लाइक नहीं किया। ब्लिंडा क्या करती है, ब्लिंडा तयूरी चढ़ाती है, गुस्से से देखती है, ये क्या बकवास कर रही है। कौन कर रही थी, क्लेरिसा की स्पीच को वो लाइक नहीं करती और बल्कि उससे पे तयूरी चलाते हैं और वो बुरी नजर से देखते हैं। और थैल्सियस उसे कहती है प्रूड मकार औरत, कि तुम हमारा साथ नहीं दे रही, तुम बैरन का साथ दे रही हो, पहले भी तुमने कैंची उसे दे दी ताकि वो ब्लिंडा की लॉक काट दे, तुम मकार औरत हो। टू आर्म्स द फ्यूरियस विर्गोस क्राइज,
हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। टू आर्म्स का मतलब हथियार उठाओ, चलो जी लड़ाई की तैयारी करो। जैसे वो कहता है कि वी हैव टू फाइट टू विन वॉर अगेंस्ट गॉड, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट। द फियर्स विरगोस क्राइज, लड़ाका और चिल्लाती है। एंड स्विफ्ट द लाइटनिंग टू द कॉम्बैट फ्लाइज, और जो है इस तरह एक रोशनी निकलती है कॉम्बाइंड फ्लाइज, और लड़ाई के लिए वो ऐसे लगता है कि जैसे रोशनी निकल रही है, यानी जो जब वो हथियार उठाते हैं। एंड टू कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, लड़ाई, और लड़ाई के लिए उड़ते हैं या दौड़ते हैं। ऑल साइड इन पार्टी, दोनों साइड जो पार्टीज हैं, बैरन और दूसरी, एंड बिगन्स अटैक, और एक दूसरे पे अटैक शुरू करती है। दोनों पार्टी, एक बैरन का ग्रुप है, एक उसका। फैंस क्लैप्स, सिल्क रसल्स एंड टफ वेल्स बोन क्रैक। फैन क्लैप्स, क्लैप्स का मतलब कि फैंस जो है उनकी आवाजें आती हैं। सिल्क रसल, और सिल्क जो कपड़ा है उसकी भी रसलिंग किया। ये जो आवाज है इसको लिखें ओनोमेटोपिया। ये होती है ओनोमेटोपिक साउंड। ओनोमेटोपिक साउंड जब किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वॉइस जो होती है, वो जैसे कौवा है तो वो क्या क्या कर रहा है, तो वो उसकी क्या ओरिजिनल साउंड है, इसे कहते हैं ओनोमेटोपिक साउंड। तो फैन की जो क्लैप है उसकी ओनोमेटोपिक साउंड है। ये उसने ओनोमेटोपिया यूज किया पोएट ने। फैन क्लैप्स, सिल्क रसल्स, और सिल्क जो है जो कपड़ा है उसकी भी रसल की आवाज आती है, सरसराहट। एंड टफ वेल बोन्स क्रैक, ये जो उसके ऊपर लगी होती है ना मछली की बोन्स, तो उसकी भी बनाते हैं पेटीकोट के ऊपर बटन से, तो उनकी भी आवाज क्रैक क्रैक की आवाज आती है। हीरोज एंड हीरोइंस शाउट कंफ्यूज्ड राइज, मर्दों और औरतों की लड़ाई से जो आवाजें आ रही हैं, आप इसको सेक्सुअल कोनोटेशन भी दे सकते हैं कि इट इज टेकन एज अ सेक्सुअल कोनोटेशन, मेल एंड फीमेल आर मिक्स्ड एंड दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन सम सेक्सुअल एक्टिविटी। हीरो एंड हीरोइंस शाउट कंफ्यूजली, हीरो और हीरोइन बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों से कंफ्यूज्ड वॉइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड बैस एंड ट्रम्बल वॉइस स्ट्राइक द स्काई, और उनकी जो भारी आवाजें हैं उससे आसमान जो है वो भी ट्रम्बल कांप रहा है। स्ट्राइक द स्काई, और वो आसमान गूंज रहा है। आगे देखिएगा, प्रोप्ड ऑन द बॉडकिन स्पीयर्स द स्पिरिट सर्वे। आप जो बॉडकिन स्पीयर का मतलब लिखें, ये होती है ये मोमबत्ती जो होती है ना, उसका एक उसका होता है कवर, तो उसके अंदर उसके ऊपर बैठी है, कौन बैठी है, सिल्फ बैठी है, और वो तमाशा देख रही है। प्रोप्ड ऑन द बॉडकिन स्पीयर, बॉडकिन के स्पीयर के ऊपर बैठी है, और स्पिरिट सर्वे, और स्पिरिट वहां से देख रही है सब कुछ। स्पिरिट वही जिसने लड़ाया उनको। द ग्रोइंग कॉम्बैट और असिस्ट द फ्रेज, और फिर वो क्या कर रही है, और वो वहां पे बैठी और बढ़ा रही है सारी फाइटिंग को। असिस्ट द फ्रेज एंड ग्रोइंग कॉम्बैट, बढ़ती हुई लड़ाई को देख रही है और उसको मदद कर रही है उनकी, ताकि वो ज्यादा बढ़े। वाइल थ्रू द प्रेस इन रेज थेल्स्ट्रस फ्लाइज, थेल्स्ट्रस while through the press enraged, और उसी से जो लड़ाई जो है और बढ़ती है, थेल्स्ट्रस जो है वो आगे बढ़ी है, और वो क्या करती है, एंड स्कैटर्ड डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज, और अपनी आंखों से इधर उधर मौत बिखेर रही है। यानी उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि जितने भी लवर हैं उसकी आंखों से मर रहे हैं, वो देखती है और वो नीचे गिर पड़ता है। अबोज, ये भी एक जस्ट कॉनोटेटिव ऑफ सेक्सुअल मीनिंग ही। अबोज एंड विटलिंग्स, विटलिंग का मतलब होता है अक्लमंद, अकल। अबोज एंड विटलिंग पैरिश्ड इन द थ्रोंग, और इसमें जितने भी लवर हैं और जो लड़ने वाले हैं सारे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। पैरिश का मतलब होता है खत्म होना, इन द थ्रोंग, उस हजूम में। वन डाइड इन मेटाफर्स एंड वन इन सॉन्ग्स, एक तो मेटाफर जो है इशारे से ही मर गया, एंड वन इन, एक को उसने सॉन्ग सुनाया वो मर गया। और क्रूवल निव, ए जालिम निव, ए जालिम दशीजा, खूबसूरत लड़की, और लिविंग डेथ आई बियर्स, आई लिविंग डेथ आई बियर, इस मौत के लिए तो मैं जिंदा था कि तुम मुझे मारो। कौन कहता है, बैरन। क्राइड द डैपर विट,
टेपरविट का मतलब है वो चिल्लाता है। एंड संक बिसाइड हिज चेयर्स, और चेयर में साथ गिर पड़ता है। मॉर्नफुल, यानी वो लवर क्या कह रहे, मर भी रहे हैं और उन खूबसूरत लड़कियों को कहता है कि मैं इसलिए तो जिंदा था कि तुम मुझे ऐसे अपनी आंखों से मार डालो और मैं इनमें डूब जाऊं। A mournful glance are foppling upward cast, और एक बड़ी मातब वाली जो ग्लांस है, ग्लांस का मतलब होता है नजर। सर फॉपलिंग अपवर्ड, सर फॉपलिंग जो है ऊपर देखता है, कास्ट और डालना अपवर्ड ऊपर। Those eyes are made so killing, ये नजरें तो मारने वाली हैं, किल करने वाली, इतनी खूबसूरत दशीजा है कि ये तो नजरें ही मार रही हैं इसकी। Was his last, ये उसके अल्फाज, लास्ट अल्फाज से सर फॉपलिंग के जब वो मर रहा था उसके मुंह से ये निकले। Thus on the Manders, thus on the Manders, thus on the Manders floweries margin lies, ऐसे लगता था कि जैसे कोई रिवर के किनारे मार्जिन के पड़ा है कोई। द एक्सपायरिंग स्वैन्स एंड ही सिंग्स ही डाइज, जैसे कोई खत्म मरती हुई स्वैन बतख है, और एज ही सिंग्स ही डाई, और वो गा रही है और साथ मर रही है। व्हेन बोर्ड सर प्लूम्स हैड ड्रांस क्लेरिसा डाउन, जब सर प्लूम ने क्लेरिसा को पकड़ा और नीचे गिरा लिया। छो खोलिस, ये लफ्ज जो है ना, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्लोइस, क्लोय, इसका मतलब होता है लवर, जो बिलव्ड है। क्लोय, क्लोय स्टेप्ड इन एंड किल्ड हिम विद द फ्रॉन्स, एक बिलव्ड जो है, एक जो खूबसूरत दशीजा है, वो आगे बढ़ी और उसने उसको एक तयूरी से मार दिया। किसको? सर प्लूम को। शी स्माइल्ड टू सी द डॉटी हीरो स्लेन, वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बड़ा बहादुर जो हीरो है वो नीचे गिर पड़ा। कौन? सर प्लूम। सर प्लूम को सिर्फ हंसने से ही मार दिया उसने। बट एट हर स्माइल द बूस रिवाइव्ड अगेन, लेकिन जब वो दोबारा हंसी तो सर प्लूम फिर जिंदा हो गया। नो जॉब सस्पेंड हिज गॉर्डन स्केल्स इन एयर, अब जो है जॉब जो है गॉड ऊपर से आया, उसने तराजू ऐसे ऊपर कर दिया। वो लड़ रहे हैं ऊपर, उसने तराजू ऐसे फेंका। देखिए कैसे करैक्टर लेता है। ऐसे जी जॉब आया, गॉड सबसे बड़ा गॉड जो है ऊपर से आया, उसने ऐसे तराजू ऊपर से लहराया, भाई इधर आ जाओ, छोड़ दो लड़ाई, इधर आओ, अभी फैसला करते हैं। Where the men's wit against the ladies here, उसने सारे मर्दों की अकल जो है एक साइड पे पर्दे में डाल दी, एक पलड़े में, और ब्लिंडा की जो लट है वो एक साइड पे डाल दी। अब फिर क्या हुआ देखें। The doubtful beams long notes from side to side, मशकूक तराजू जो है वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, ऐसे लहरा, ऐसे लटखड़ा रहा है। Length the weight mount up and the hair subside, आखिरकार मर्दों की जो अकल है वो ऊपर चली गई और ब्लिंडा के बाल जो है वो नीचे झुक गए। सबसाइड का मतलब लिखे नीचे झुक गया। See fierce Belinda on the parents flies, ब्लिंडा ये देखकर इतनी गुस्से में आई और लपकी किसकी, मुश्तिल होकर किसकी तरफ बढ़ी? बैरन की तरफ। With more than usual lighting in her, अब उससे की आंखों से मामूल से ज्यादा चमक जो है निकल रही है। Nor feared the chief's unequal fight to try, और चूंकि उसे पता था कि अब ये क्योंकि ये लेडी है और फिर इसके साथ सिल्फ भी हैं और इतनी बड़ी आर्मी भी है, फिर भी वो डरा नहीं। चीफ का मतलब लिखे बैरन है यहाँ। नॉट फियर द चीफ, चीफ फिर भी नहीं डरा। आप देखिए छोटी सी बात को अब भी बढ़ाया जा रहा है, एग्जैजरेट किया जा रहा है, हाइपरबली। Nor fear the chief the unequal fight to try, चीफ इतनी अनइक्वल फाइट को, इतनी ये गैर मुनासिब किस्म की लड़ाई जो इक्वल भी नहीं है उसके लिए भी खड़ा हो गया, सीधा हो गया, और लड़ने के लिए सीधा हो गया। Who sought to more than on his foe to die, और वो कहता है who sought no more than on his face foe to die, कहता है कि कौन चाहेगा कि इतने खूबसूरत हसीन दुश्मन के हाथों ना मरे। But this bold lord with manly strength endued, she with no fingers and thumbs subdued, उसने वो अपनी मर्दाना ताकत रखने के बावजूद, मैनली स्ट्रेंथ यानी वो नवाब जो था अपने पास मर्दाना ताकत या एक मर्द होने के बावजूद, शी विद वन फिंगर एंड थंब, उसने एक फिंगर के साथ उसको सबड्यू कर लिया, अपने नीचे कर लिया। कैसे उसे कर लिया? जस्ट वेयर द ब्रीथ लाइफ इज नॉस्ट्रल डू, जहां से वो नाक से सांस लेता है उसमें उसने उसके कोई चीज जो है डाल दी, उसने उसमें नसवार डाल दी।
चार्ज ऑफ द स्नफ द विल्ली वर्जिन थ्रू, मकार लड़की ने उसके नाक में नस्वार डाल दी। द नॉम ड्रग टू एवरी ऑटम्स जस्ट, और नॉम जो है उसकी हेल्प करती है और वो आगे उसको ले जाती है उसी को, क्योंकि वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है तो वो नाक में डालती है, वो नीचे सारे ले जाती है बैरन के। द पंजेंट ग्रेन्स टिटलेटिंग, टिटलेटिंग का मतलब लिखें गुदगुदी करना, तो उससे उसके अंदर ऐसी गुदगुदी होती है, यानी गुदगुदी होती है कि वो क्या फिर करता है, सडन विद स्टार्टिंग टीयर्स ईच आईज ओवरफ्लो, तो बड़ी जल्द ही फिर उसकी आंखों से बड़ी तेजी से जो आंसू हैं पानी निकलना शुरू हो जाता है। एंड द हाई डोम्स रीओकोज हिज नॉइजी नोज, और फिर उसकी छींकों से पूरी इमारत जो है वो गूंजने लगती है, यानी उसे इतनी छींकें आती हैं कि पूरी इमारत गूंजने लग रही है। देखें इसको भी एपिक लुक दी गई है, आपने ये साथ साथ एक्सप्लेन करना है। It's given epic look because as it is used in the Homer Virgil when they were roaring, the god and goddesses they were roaring, it was creating hue and cry. इतना hue and cry था कि उसकी वजह से पूरी जो बिल्डिंग्स थी उन गॉड और गॉडसेस के लड़ने की वजह से वो गूंज रही थी। ठीक है जी, पूरी दुनिया जो है ओलंपस माउंटेन जो है गॉड और गॉडसेस की रहने की वजह से वो गूंज रहे थे, तो बिल्कुल इसी तरह ये गूंज रही है, इमारत गूंज रही है उसकी छींकों से, एपिक लुक दी जा रही है। नो मीट दाई फेड इंसेंस्ड बिलिंडा क्राइड, आप बिलिंडा ने कहा आप अपनी किस्मत को कोसो, ये जो खुशबू है बिलिंडा जो कहती है, बिलिंडा चीखती है। एंड ड्रू ब्रैडली बॉडकन्स फ्रॉम हर साइड, और फिर वो एक पिन निकालती है, एक सुई निकालती है, फिर वो भी चुभोती है उसके। तो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। टुमारो इंशाल्लाह विल बी स्टडिंग रिमेनिंग कैंटो, इसको फिनिश करेंगे and then we'll start another poetry book, and the poetry book Paradise Lost. Paradise Lost जो है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बाद, और Paradise Lost की लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे। जैसे हमने इसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट देखी है, उसमें हमने बहुत सारी, इसमें आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख लेगा, क्योंकि हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट देख रहे हैं। अगर कोई सरगोदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो क्वेश्चन इधर से आने हैं, थैलस्ट्रेस कौन थी, ठीक है, किसने उसको बॉडकन जो है वो प्रिक किया था, किसने उसके नोज में नोस्ट्रल जो है वो स्नफ उसके नोज में डाली थी, ठीक है, जॉब कौन था, या वो बात करेंगे कि गॉड गॉडसेस का जो जिक्र हुआ है वो कौन था, होमर एपिक के बारे में कुछ वो पूछ लेंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल इधर से ही पूछी जाएंगी, स्पेशली फॉर द सरगोदा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो बोथ यू पीपल आर गोइंग टू गेट ग्रेट एडवांटेज। You just keep on listening to my lecture and you will be getting lot of knowledge, because each and everything is being explained in my lectures, and you people having enough opportunity over here, ample opportunity over here to learn and write whatever you want. You can extend information, you can write as much as you can explain with reference to the contact, you can even give explanation. तो आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकोगे, लिख भी सकोगे। जस्ट जो मेरे पॉइंट्स हैं वो साथ साथ लिखती रहा करें। जैसे मैंने आज जिक्र किया कि ब्लिंडा जो है वो बड़ी फ्यूरियस होती है, वो रोती है, बैरन के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे वो अनीस जो है, जो विर्जल का एपिक का हीरो है, उसके ऊपर कोई डीडो और एना का असर नहीं होता, वैसे बैरन के ऊपर बैरन पे असर हो भी कैसे, इतनी खूबसूरत शीज़ा भी फेल हो गई है। और फिर वो बैरन जो है वो फाइट करता है। फाइट कैसे हो रही है कि वो किसी को बॉडगन के ज़रिए, किसी को क्लिप के ज़रिए, किसी को वो स्नफ के ज़रिए मार रहे हैं। पहला जो लड़का सामने आता है सर फॉपलिंग, तो उसकी डेथ होती है। उसके मरते हुए अल्फाज ये थे कि इतनी खूबसूरत आँखें, तो इस तरह उसके बाद सर प्लूम को वो मुस्कुरा के मार देती है, फिर मुस्कुराती है, फिर वो जिंदा हो जाता है। तो इसी तरह दे कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, and hope you've learned a lot from today's lecture, and tomorrow you'll be learning about remaining canto. Stay blessed and have a nice time.